Hi everybody, let's start chapter number first, part 2. Okay, we have completed part 1, and in part 1 we saw many things such as what is a resource, what is utility, what is value, and how a substance become resource. We saw about commercial value, economical value. I told you about time and technology and many things. So if you want to go through that video, just check description box below. I have provided a link there. Touch on that link and you will be in part 1's video. Okay, so now let us start part 2. We will start this part 2 with types of resources. So let's begin. Resources are generally classified into three types: natural, human made, and human resources. So resources can be classified into three types: natural, human made, और ह्यूमन रिसोर्सेज. तो सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज पे एक लुक डाल लेते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, resources that are drawn from nature are used without much modification are called natural resources. So what we can say, such resources that we collect from nature, that we gain from nature, या फिर हम बोले ऐसी रिसोर्स, ऐसी चीज़, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें से एक ऐसी चीज़ है जो हम नेचर से लाते हैं, मतलब हमें कोई देता नहीं है, नेचर हमें देती है, और उसको हम बिना किसी सुधार के भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत कम सुधार करेंगे तब भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि जैसे एयर जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं, उसमें आप मशीन्स लगा के पहले उसको मॉडिफाई करो एंड देन यू ब्रीथ. We do not do so, okay? We directly breathe it in. So this is what, this is natural resource, and also this is provided by nature. This is a free gift of nature. ये हमको nature ने free gift दिया है. Okay, so this was one example for this natural resources. Next is what, water in our rivers and lakes is also what, natural resource. Why? Because we can use that river water or lakes water directly, but in nowadays we have to filter it first because this is so much dirty. The soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature, as I told you before, and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resource in the best possible way. इसका मतलब है कि बहुत सारी जो रिसोर्सेज होती हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब कि आप भी उसे यूज़ कर सकते हो. उसे पहले इंडस्ट्रीज़ में जाकर पहले उसको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात कि हम उसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं. कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है. हाँ, और हम इसलिए यूज़ करते हैं टू यूज़ दैट नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे. डन. Okay, so we have completed what, natural resources. Now this natural resources also can be categorized into two types, and first is renewable and second is non-renewable. As the word suggests, these are opposites of each other. ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, opposites है. So if we are able to understand one, we will understand other one also. Okay, so let us take a look at renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम जो जल्दी से ही रिन्यू हो जाते हैं, और रिप्लेनिश मतलब होता है जल्दी से ही अपना स्टॉक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं, इनमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं, और इनका जो स्टॉक होता है दिस इज़ अनलिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा होता है. सो सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. अब देखो, सोलर एनर्जी हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, सन से आती है, तो दिस इज़ अनलिमिटेड. हाँ, सो दिस इज़ व्हाट, रिन्यूएबल रिसोर्स. और विंड एनर्जी भी कहाँ से आती है, हम विंड मिल चलाते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ विंड एनर्जी. तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट, रिन्यूएबल रिसोर्स. Okay, I think you have understood it. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन जो ह्यूमन है वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ता. वाटर, सॉइल और जो फॉरेस्ट है वो उनकी जो स्टॉक्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. Yet they are renewable, बट फिर भी उनके जो स्टॉक हैं they are affecting.
Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of world. तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ी हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के सामने कि वाटर बहुत कम हो रहा है. यू विल रीड अबाउट वाटर, अबाउट सॉइल in your next chapter number 2. Okay, and what is the name of that chapter? That is land, water, soil, natural vegetation and marine life. It is a big name. Okay, so now let us move to the non-renewable resources. Now see here, one second. Yeah, non-renewable resources are those which are limited. These resources are limited. Once the stock have affected or exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर एक बार इनका स्टॉक ख़त्म हो गया तो इनको हज़ारों साल लगेंगे इसको पूरा करने में, और ये जो टाइम इनको लगेगा ना अपने आप को फिर से, अपने स्टॉक को फिर से भरने में, वो ह्यूमन की लाइफ स्पैन से बहुत ही ज़्यादा है. ओके, सो मैं आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ. सी यार, रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप. दे आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप. फर्स्ट इज नेचुरल एंड अदर वन इज थ्री टाइप, सॉरी, human made, and the third one is human resources. Natural resources are of also two types, and we completed this, and we completed what is natural resources. Now let us move to the next one. This is what, yeah, such resources are considered non-renewable resources, such as coal, petroleum and natural gas are some examples. So this coal, petroleum and natural gas, this is example of what? Non-renewable resources. The distribution of natural resources depend upon the physical factor like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because the factor differ from much over the earth. तो यहाँ पे क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले तो आपको एग्जांपल दिया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या एग्जांपल है, फिर आपको बताया कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है दूसरी जगह पे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोलर रीजन ऑफ द अर्थ. अभी सन की लाइट इधर ज़्यादा पड़ रही है तो इधर ज़्यादा हीट होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट थोड़ा सा कोल्ड होगा, थोड़ा सा कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड रीजन है. तो जो रिसोर्सेज इधर पाए जाते हैं वो रिसोर्सेज इधर नहीं पाए जाते होंगे, या फिर जो रिसोर्सेज इधर पाए जाते हैं वो रिसोर्सेज इधर पोलर रीजन पे नहीं पाए जाएंगे. तो ये जो है ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, तो यहाँ पे देखो एक ग्लॉसरी है, या हियर स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़. एज आई टोल्ड यू कि जितना अमाउंट हमारे यूज़ के लिए, रिसोर्स हमारे यूज़ के लिए है, दैट वी कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज. ओके, now let us move to the human made resources. Yeah, here it is. What is human made resources? So sometimes a natural resource become resource only when their original form has been changed. तो कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्स होती है जब हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दें, उसके सही जो रूप है उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, तभी वो कोई एक रिसोर्स बन पाती है. जैसे आपको आयरन ओर ला कर दे दिया जाए. आयरन ओर क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर जिसके, ये बड़ी सी रॉक होती है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है. सो वी कैन नॉट यूज इट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. तो सबसे पहले पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. तो आयरन को कैसे उसके अंदर से निकालना है, पीपल ने ये लर्न किया, ठीक है. देन पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग. फिर पीपल जो हैं, मतलब हम लोग जो हैं, वो ये नेचुरल रिसोर्स मतलब ये आयरन और यूज़ करके क्या बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, ब्रिजेस बना दिया, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स बना दिया. सो यहाँ पर क्या है ना कि ये सब क्या बन गई, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अगर हम एक तरीके से देखें तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है ना, ये भी किस पे डिपेंडेंट होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट होती है. बिकॉज जैसे आयरन ओर से बिल्डिंग बनी, हम बोलते हैं कि बिल्डिंग जो है इट इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. हाँ, दिस इज़ राइट, बट दिस बिल्डिंग, इसका जो बेस आया, मतलब बेस मतलब वो नहीं जो नीचे का पार्ट है, दैट इज़ कि ये आयरन ओर से आई, मतलब आयरन की बिल्डिंग बनी, आयरन भी तो लगता है. तो जो आयरन ओर आया दैट इज़ अ
नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है स्टोरी का। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, या said Mona nodding in understanding. Yes, said राजू। तो यहाँ पे क्या है कि जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। ये मोना ने बोला था और राजू ने क्या बोला, देन यस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थिंक ऑफ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ दियर स्टॉक्स मे गेट अफेक्टेड बाई ओवर यूज़। तो हमें यहाँ पे कुछ रीन्यूएबल रिसोर्सेज बताने हैं जिनकी जो स्टॉक है वो अफेक्ट हो रही है। क्यों अफेक्ट हो रही है, ओवर यूज़ से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं ओवर यूज़ से अफेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, लेट्स डू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अपने आसपास देखो ऐसी चीज़ जो इंसानों ने बनाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हो जाता है clock, laptop, keyboard, and tripod, chairs. I have listed 5 things, and you can make your own list with your observation. Now let us see what human resources क्या होती है उनके बारे में देख लेते हैं. So people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and next page पे है एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो जो इंसान है वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर अपनी स्किल को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो वो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पेशल रिसोर्स। इसलिए तो ह्यूमन, तो देखो ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ये भी हमारी नीड को पूरा करते हैं, मतलब हम खुद अपनी नीड को पूरा करते हैं। सो वी आर ऑल्सो अ रिसोर्स। आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने एक लास्ट में जो ड्राइंग दिखाई थी हमने, उसमें क्या था कि एक मदर होती है, अपनी बेबी को बोलती है यू आर अ वैल्यूएबल वन, देन शी सेड दैट सो दैट आई एम अ रिसोर्स, शी इज आस्किंग विद अस, सो शी इज अ रिसोर्स, शी इज व्हाट, human resource. Okay, so in bold blue letters written is people are human resource. So people जो होते हैं वो human resource होते हैं. Education and health help in making people a valuable resource. तो जो education और health होती है वो क्या बनाती है, people को एक valuable thing बनाती है, वो एक बहुत ज़्यादा ही valuable thing बनाती है, so that it have a utility and it is a resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कि जब पीपल को और अच्छी स्किल दी जाती है, किसी को अच्छी स्किल दी जाती है कि वो और भी अच्छी अच्छी चीज़ क्रिएट कर सके, और दैट इज़ अ रिसोर्स, मतलब वो और भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट कर सके। कौन क्रिएट कर सके, पीपल। सो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मीन्स ह्यूमन develop the resources. Understood? So this is a very common example, this is a very common word to understand. Now let us move to conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. तो यहाँ पे मोना को एक नाइटमेयर आया। नाइटमेयर का मतलब होता है बैड ड्रीम या फिर बहुत बुरा सपना आया कि पूरी अर्थ से वाटर जो है सूख चुका है, सारे के सारे ट्रीज कट चुके हैं और वहाँ पे कोई शेड नहीं है, कुछ भी खाने पीने को नहीं है, और जो पीपल है मतलब आदमी है वो लोग सफ़र कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं और इधर से उधर बस घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास ना खाने को कुछ है, ना शेड के लिए कुछ है, ना छाया है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो वो अपनी मम्मी को इस ड्रीम के बारे में बताती है एंड आफ्टर दैट शी इज़ आस्किंग दैट अम्मा क्या ये रियली हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड। तो अम्मा ने क्या रिप्लाई दिया, यस, if we are not careful then even renewable resources can become very scarce and non-renewable resources can definitely get exhausted. What can we do about it, Raju or asked Lords, replied अम्मा। तो अम्मा क्या बोलती है, हाँ ऐसा हो सकता है, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे और हम उसको बस वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जो अपने स्टॉक को पूरा कर लेती है वो बहुत कम हो जाएंगी। ओके, एंड जो नॉन रीनेबल रिसोर्स हैं उनका क्या होगा, वो तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो ये जो है अम्मा बोलती है और फिर वो
पूछते हैं कि क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, राजू पूछता है, तो उसकी अम्मा बोलती है हाँ हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स रीड हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, हम क्या करें कि उनकी यूज़ को कम कर दें, हम उनके यूज़ को कम कर दें और उनको इतना टाइम दें कि वो अपने आप अपने स्टॉक को रीफिल कर सके, रीन्यू कर सके। सो उससे क्या होगा कि इनकी रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। सो दिस इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है किसी चीज़ का बचाव करना। नेक्स्ट इज वॉट balancing the need to use resource and also conserve them from the future is called sustainable development। अगर मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊँ कि आपके क्लास के बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दूँ, सपोज दिस इज़ वन ग्रुप, दिस इज़ अदर ग्रुप, दिस इज़ अदर ग्रुप एंड दिस इज़ अदर ग्रुप, ये 4 बच्चे हो गए। मैं यहाँ पे सामने कुछ ट्रॉफीज़ रख दूँ, ओके, एंड मैं बोलूँ कि आप पहले आओ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। पहले मैं ए ग्रुप को बुलाऊँ और बोलूँ आपको जितनी ट्रॉफीज़ खानी हो उतनी ट्रॉफीज़ खा लो। तो पहला वाला बच्चा आएगा, वो जितनी ट्रॉफीज़ खानी होंगी उतनी ट्रॉफीज़ खा लेगा, फिर मैं उसे भेज दूँगी। फिर मैं बी वाले बच्चे को बुलाऊँ और बोलूँ आपको जितनी ट्रॉफीज़ खानी हो उतनी ट्रॉफीज़ खा लो। देन आफ्टर दैट सी। तो क्या होगा कि जब डी की चांस आएगी, सी और डी की चांस आएगी, या फिर हम देख लेते हैं डी की चांस आएगी, तो क्या होगा कि इसके लिए बहुत कम बचेगा। इसके लिए क्या होगा कि जो ट्रॉफीज़ मैंने प्रोवाइड की हैं वो बहुत कम बचेंगी या फिर बचेंगी ही नहीं। सो ऐसे ही हम जो रिसोर्सेज मन मर्जी से यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ऐसे यूज़ करते तो हमारे फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर हम उसे बैलेंस में यूज़ करें और अपने फ्यूचर को भी अब उसे कंजर्व करके रखें, सो दैट हमारी जनरेशन मतलब आने वाला फ्यूचर भी उसे यूज़ कर सके, इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं सोचती हूँ कि मैंने अच्छे से समझा दिया। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे वेज हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हम अपने कंजप्शन को कम कर दें, मतलब जैसे कि कम खरीदें, कम यूज़ करें उसको 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 रिसाइकल करें और जो थिंग्स हमने यूज़ कर लिए उसको रीयूज़ करें। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अगर आप इसको करना शुरू कर दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि हम सबकी लाइफ एक लिंक्ड है, मतलब कि बंधी हुई है एक दूसरे से। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम अकेले ही कर पाते तो अब तो बहुत कुछ कर देते, बट नॉट। ये वीडियो कोई एक बच्चा नहीं देख रहा है, अगर आप सब लोग करोगे तो दिस विल बी वेरी अफेक्टिव। अब देखो सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इधर भी पढ़ लेते हैं। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब वही बोला जो मैंने आपको बताया था कि हम उसको कम यूटिलाइज करें सो दैट वी यूज़ इट प्रेजेंट, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करें प्रेजेंट में, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बट हमें फ्यूचर जनरेशन की भी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक और छोटा सा पार्ट आ गया स्टोरी का। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks। तो उस शाम चिल्ड्रन ने, मोना और राजू ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग बनाए। किससे बनाए? ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लोथ से। डिस्कार्डेड मतलब होता है जो ऐसे क्लोथ्स जो नहीं यूज़ करते हैं, और बैम्बू के स्टिक से। तो इन लोगों ने बनाया, यहाँ पे देखिए आप बना रहे हैं ये लोग, ये देखो ये डिस्कार्डेड क्लोथ से बना रही है और ही इज मेकिंग विथ बैम्बू स्टिक्स। नेक्स्ट व्हाट इज रिटन हियर, वी विल गिव अ फ्यू टू every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause। तो देखो यहाँ पर ये बच्चे अकेले ही काम कर रहे हैं ना, ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम ही 4 करेंगे तो क्या पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा कि ये लोग बना करके दूसरी फैमिलीज को भी देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। तो ये जो है हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से सेव करने में और हमारी अर्थ को बहुत दिनों तक अलाइव रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी बोलती है कि हमें पेपर को नहीं वेस्ट करना चाहिए।
Many trees are cut down to make paper, she explained. And you know कि trees हमारे लिए कितने important होते हैं. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि how important trees are for us. फिर भी हम पेपर्स टीयर करते हैं अपनी कॉपी में से और सोचते हैं कि अरे यार इससे कुछ नहीं होने वाला, बट इट इज़. जो trees हैं they are cut down to make papers, so save paper. I will see that electricity not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी मत वेस्ट करो. अभी कितना सारा अभियान चलाया जा रहा है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर. तो डोंट वेट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर और कोल से. अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कोल यूज़ होगा, और ज़्यादा कोल यूज़ होगा सो इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक और छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, बस इतना ही रह गया. ओके, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, शिट आशा. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस. तो आशा के बोलती है कि मैं ये ध्यान दूंगी कि मेरे घर पे पानी ना वेस्ट हो. आप भी ध्यान दो कि आपके घर पे पानी ना वेस्ट हो. क्यों? क्योंकि हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी वेरी प्रेशियस. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. फिर यहाँ पे कोर्स चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है, 1 सेकेंड, कि एक साथ बोलना. ठीक है, तो यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं कि हम लोग मिल करके एक डिफरेंस ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में. नेक्स्ट इज व्हाट दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड डिड. तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो आपको बताई वो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने की. व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज. यू, अब आप लोग कैसे इन रिसोर्सेज को करने वाले हो, इसको लिख देना. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. तो हमारी क्या क्या ड्यूटी है, वैसे ही बोल रहा है कि जो हमारा प्लानट है, हमारे जो फ्यूचर का प्लानट है उसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ जो है एक दूसरे से लिंक होती है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये करोगे ना, ये हमारी ड्यूटी है तो हमें करनी पड़ेगी. तो ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबल मतलब होता है अपना यूज़ करो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और फ्यूचर के लिए कंजर्व भी करो. नेक्स्ट इज व्हाट द डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व. तो जितनी बायोडाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं उनको भी कंजर्व करो. द डैमेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज. जो डैमेज हम कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसको मिनिमाइज मतलब कम करना है. अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं वो स्कूल प्रिंसिपल नहीं, ये हैं रूल्स. इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रूल्स और हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. मतलब हमें हर एक प्रकार के जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमें अपनी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए. कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी. अर्थ की विटैलिटी और अर्थ की डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. चेंज इन पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट. तो हमें क्या करना चाहिए, जितने हम डिप्लेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे उसे मिनिमाइज़ करना चाहिए और अपने पर्सनैलिटी को डिफरेंट करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहिए और हमें इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट. अभी जैसे हमारे मन में एक विचार आता है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने जो आसपास के लोग हैं या फिर कम्युनिटी है उन लोगों को ये बताइए कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करें, कंजर्व करें. Okay, so these are some of our duties. So here our chapter is finished. Thank you.